पश्चिम बंगाल से बता देते हैं कि ममता बनर्जी आज सड़क पर पैदल मार्च निकाली थी। दरअसल वह पैदल मार्च महिला चिकित्सक के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उनके पक्ष में निकाला। पैदल मार्च के दौरान उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले की जांच ठीक से करे और जो दोषी है उस पर कठोर से कठोर सजा दी जाए। हालांकि कुछ दिन पहले अभी मेडिकल कॉलेज के पास जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें कुछ उन्मादी घुस गए और अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई। ममता बनर्जी ने कहा कि वो आरोपी सबूत को मिटाने के लिए जा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने सबूत को बचा लिया है और उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है। This is Mahua Moitra, Member of Parliament from Krishnanagar, West Bengal, and National Spokesperson for the All India Trinamool Congress. There are a couple of things about this case that need, I think, some kind of clearing up, and it is understandable in the fog of emotion that there's room also for a lot of false propaganda. So I'm here to put a few things on record. The story that is going around that the state government and most of all the chief minister and all of us who are elected representatives are indulging in some kind of a systematic cover-up is absolutely wrong and incorrect. The chief minister was in Jhargram, Medinipur when the incident happened. When she was informed about it, she spoke to the family of the girl immediately. Upon her return to Calcutta, she went and visited them. Within 12 hours, the police arrested the prime suspect on the basis of CCTV evidence. Now, all of the investigation depends on the DNA, on the forensics, and the forensics are with the Central Forensic Lab. It is impossible to make arrests without either forensic evidence or CCTV evidence. The chief minister even came out and told the family that if you're not okay with the way we are progressing, we're absolutely okay with this being given to the CBI. The Calcutta High Court, in its wisdom, has given the case now to the CBI. The CBI is carrying on an investigation which the state government and the Calcutta police are cooperating fully with. The police have made no mention of any cover-up anywhere. Whatever questions there may be about the conduct of the people in the administration and the people in charge in RG Kar Hospital are justified, and barring that, everything has been done by the state government to stand by the victim of the family and to ensure that justice is given. बड़ी बात यह है कि पहले टीएमसी इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब टीएमसी उस मामले के साथ है। वहीं प्रदर्शन अब भी जारी है। देश के कोने कोने में इस मामले को लेकर बातचीत हो रही है और दोषियों पर कड़ी सजा करने के लिए मांग की जा रही है। ममता बनर्जी ने यहाँ तक कहा कि जो उन्मादी वहां अस्पताल में पहुंचे थे वो भाजपा और वामपंथी के लोग थे। যারা এই তাণ্ডব করেছে তারা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে, এই আরজি করের ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, তারা আউটসাইডার। আমার যতদূর মনে হয়, আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, আর কারো হাতে ডিওয়াইএফ এর সাদা লাল फ्लैग। बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल से ऐसी घटना संदेश खाली से भी आई थी, उसके बाद भी वहां पर टीएमसी बचाने की कोशिश कर रही थी। इस घटना में भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ऑलरेडी एक महिला है, उस प्रदेश की सीएम है, बाकायदा उनके पास गृह मंत्रालय है, यानी कि पुलिस विभाग भी ममता बनर्जी के पास है, और स्वास्थ्य मंत्रालय यानी मेडिकल कॉलेज और जो सारी चीजें हैं वो भी ममता बनर्जी के अंदर ही आती है। लेकिन उसके बावजूद इस घटना में इतनी लेट लतीफी काफी सवाल खड़ा करता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो ये मामला हुआ है, ये टीएमसी के लिए एक कलंक है। 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस कलंक को धोने के लिए टीएमसी को काफी सारा प्रयास करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में इन दिनों काफी हिंसा बढ़ी हुई है, इस बात को वहां की हाईकोर्ट ने भी माना है। भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा है कि अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। कोलकाता में महिला चिकित्सक के मामले में पूरा बॉलीवुड ने भी अपना रिएक्शन दिया है और कहा है कि ऐसे दोषियों पर कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। इसके साथ ही इस केस को निर्भया कांड से भी जोड़ा जा रहा है। निर्भया कांड में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके बाद दोषियों को सजा देने में करीब 10 साल का वक्त लग गया। अब देखना होगा कि मामले की जांच जो सीबीआई कर रही है उसमें कितने दिनों बाद रिपोर्ट आती है, कौन दोषी होता है और उस पर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई की जाती है। पश्चिम बंगाल को छोड़ दे तो बिहार और यूपी में भी ऐसी घटना कई बार देखने को मिली है। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाल ही में 2-3 दिन पहले ऐसी घटना हुई, लेकिन उसकी बात पूरे देश में नहीं हो रही है।